So good afternoon, students. In this class, we will discuss the experiment number 5 of the manufacturing process lab. So far we have discussed and seen the experiments from 1 to 4 in this lab. The aim of the experiment is to prepare a wax casting. Actually, this practical is of unit number 1, where we studied about the casting process. So in our workshop, we are having the facility to make casting of a wax. That's why I have decided to conduct this experiment. And in the past batches of mechanical engineering in third semester performed the experiment and they prepared a wax casting. Okay. So can you tell me what should be the steps for making a wax casting? Can anybody tell? आप में से कोई बता सकता है कि वैक्स कास्टिंग बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? कोई भी जिसको आता हो अपने बता सकता है, इनवाइट करके बोल सकता है. नहीं पता किसी को? चलो तो मैं समझाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल we need to have a pattern for making a casting. So first step in casting is to have a pattern. Using that pattern, we have to make a sand mold. So second step is to prepare a sand mold. And third step is the pouring of the molten metal into the mold cavity and its solidification. So there are 3 steps in a involved in a casting process: pattern making or pattern designing, then mold making, mold assembly, and third is the pouring of the casting metal into the mold. Then its solidification and removal of the casting from the mold. So there are mainly 3 steps are there. Here you can see the name of the tools or apparatus used for making a wax casting. Most of these apparatus are written here are for making sand mold, because for making a wax casting we have already designed a pattern. We will use that pattern for making sand mold, and that sand mold will be used for making a casting. That's why you can see so many number of apparatuses or tools are used for making molds only. Hand tools, whether saw wheel, hand dreidel, all these are used for making molds. Then molding flask, this is necessary for preparing a mold, bottom mold, then pattern, riser pen, screw pen, etc. So from serial number 1 to 6, all these equipments or tools are used for making a sand mold. Then in 7th number, you can see furnace or stove for melting wax. In our lab, we are having open heart furnace, which is used for making wax. But wax is held in a crucible. So crucible is also necessary. And for holding the crucible into the furnace, we need to have a tongue. So tongs, furnace, and tongs, crucible, these are used for melting the wax, and furnace provide the necessary heat for melting the wax. So from serial number 1 to 6, these tools are used for preparing sand mold, and equipments written from serial number 7 to 9 are used for melting the wax in the furnace and taken out that wax from or transferring the wax from furnace to the mold. Can you tell me what should be the raw material used for this purpose? कोई बता सकता है कि raw material क्या होना चाहिए इस केस में? We are preparing a wax casting. क्या होना चाहिए raw material? बता सकता है आप में से कोई? Please speak. हाँ बोलो नजमुस बोलो. Roll number 62. Mohammad Najmus Saqib. Roll number 19. अनुपम कुमार. देखो भैया आगे आने वाले कुछ दिनों में मुझे आप लोगों की एब्सेंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास आके अकेले ज्वाइन करने में हमारा क्लास नहीं होती. वी हैव टू लर्न समथिंग. जी अनुपम, व्हाट शुड बी द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ वैक्स कास्टिंग? क्या होना चाहिए रॉ मटेरियल उस केस में?
अनुपम कुमार, रोल नंबर 19। जी सर। क्या होना चाहिए? और कोई बता सकता है? सर वैक्स होना चाहिए सर। Obviously it should be wax. यस सर। भाई, we are preparing casting of a wax. That's why यस the first and foremost requirement of raw material is the wax casting. अब आप बोलोगे कि नहीं सैंड मोल्ड भी हो सकता है, सैंड मटेरियल भी हो सकता है। सो सैंड मटेरियल इज एसेंशियल फॉर मेकिंग अ मोल्ड। And instead of sand mold, we can make use of dyes also. ठीक है ना? तो डाइज आर मेड अप ऑफ मेटल, तो उस केस में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो क्या होता है? वो होता है वैक्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, मोल्डिंग सैंड, फेसिंग सैंड, पार्टनिंग सैंड एंड वैक्स। ये तीनों यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। किसके लिए हैं? फॉर मेकिंग सैंड मोल्ड। ठीक है ना? यदि हमारे पास डाई है तो हम सीधे सीधे वैक्स को पिघला के डाई में पोर कर सकते हैं, तो फिर इनका रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है? These materials have been written specifically keeping in view that we will prepare a sand mold. That's why you can see molding sand, facing sand, parting sand written here. यहाँ पे लेके होने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि यहाँ पे हम मोल्ड तैयार करेंगे। किसका मोल्ड तैयार करेंगे? वैक्स का तैयार, सैंड का तैयार करेंगे। ठीक है? यस आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? नाउ व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है, वो 3 या 4 फोल्ड की होगी। Number 1, preparation of a sand mold, then melting of wax, then pouring of wax, and removal of wax casting. So there are basically four steps. And by preparing a sand mold, you can see so many number of points are written over there, and these points are provided for making a sand mold only. Making a sand mold only. तो आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि सैंड मोल्ड बनाने कैसे बनाते हैं? बता सकता आप में से कोई? अभिषेक साहू, रोल नंबर 3। यस सर। सैंड मोल्ड कैसे बनाते हैं बेटा? ये इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब आपका वायवा होगा तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेदर इट इज ऑनलाइन वायवा या हम जब फिजिकली प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। मोल्ड बनाने के लिए क्या क्या करना होगा हमको? पैटर्न फॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तो पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन हम पढ़ चुके हैं, यूनिट खत्म हो गई है, तो इस समय तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे बनाएंगे। यदि आपको, आप वर्कशॉप में गए होगे, आपने वहाँ पे जॉब बनाया होगा सैंड मोल्ड का, तब भी आपको याद आ गया होगा। तो यदि किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बताओ हमें। Place a pattern in sand to create a mold. नहीं, आपके पास, यू आर हैविंग पैटर्न, यू आर हैविंग सैंड आल्सो। ठीक है, यू आर हैविंग ऑल नेसेसरी टूल्स नीडेड फॉर मेकिंग सैंड मोल्ड। अब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? आपके पास मटेरियल रखा हुआ है, सैंड मोल्ड मटेरियल, आपके पास टूल्स इक्विपमेंट्स भी हैं वहाँ पे। अब आप कैसे स्टार्ट कर, पैटर्न भी आपके पास बना हुआ रखा है, कैसे काम करोगे? तो इसमें क्या करना है, कोई बता सकता है? अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसलिए हम आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वो यूनिट ऑलरेडी खबर हो चुकी है, अपनी खत्म हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज अ बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड के बाद हमें क्या करना है? उस बॉटम बोर्ड के ऊपर हमको क्या रखना है? पैटर्न रखना है, और पैटर्न के चारों तरफ हमको क्या रखना है? वहाँ पे मोल्डिंग फ्लास्क रखना है। ठीक है ना? मोल्डिंग फ्लास्क रखने के बाद पैटर्न के ऊपर हमको फेसिंग सैंड डालनी पड़ती है। ड्राई फेसिंग सैंड इज स्प्रिंकल्ड ओवर द बोर्ड एंड पैटर्न। फेसिंग सैंड क्या करती है कि जब हम मोल्ड प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस केस में मोल्ड को सेपरेट करते हैं बॉटम बोर्ड से, तो उस केस में ये अधेसिवनेस नहीं होने देती है, अधेसन को कम करती है वहाँ पर। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने बॉटम बोर्ड लिया, बॉटम बोर्ड लेने के बाद उसके अंदर पैटर्न रखा और उसके तरफ मोल्ड बॉक्स रखा, और इसके बाद हमने फेसिंग सैंड डाल ली। आफ्टर दैट वी हैव टू pour sufficient amount of freshly prepared molding sand और green sand। ठीक है ना? ग्रीन सैंड डालने के बाद
फिर हम चाहें तो उसके अंदर क्या डाल सकते हैं, वहाँ पे भर सकते हैं बैकअप सैंड। बैकअप सैंड क्या होती है, यूज्ड सैंड होती है, जो कि पुराने मोल्ड जिनको हमने ब्रेक किया होगा कास्टिंग रिमूव करने के लिए, तो उस सैंड को हम क्रश करके दोबारा फाइन मैंने उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसको फिल करते हैं किसके अंदर, मोल्ड बॉक्स के अंदर फिल कर लेते हैं। ठीक है ना। आफ्टर फिलिंग द बैकअप सैंड इनटू द मोल्डिंग फ्लास्क, नेक्स्ट यू हैव टू डू द रैमिंग। इसके बाद रैमिंग करनी है। रैमिंग करने के बाद हो सकता है आपको कुछ एक्सेस सेंड आपके पास हो या आपको अलग से रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसकी रैमिंग करेंगे। रैमिंग करने के बाद एक एज होती है, स्केल जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, लेबलिंग बार, उसके थ्रू एक्स्ट्रा मटेरियल अपन वहाँ से हटा देंगे मोल्ड का। वेंट वायर लेंगे जिससे हम हल्के से होल ड्रिल करेंगे, होल ड्रिल नहीं करेंगे, होल बनाएंगे वहाँ पे वेंट वायर के थ्रू यूज करके। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये परमिएबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है ना। फिर जो हमारा इसकी मोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम उसको उठा के ऊपर उल्टा रखेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, जो आपको पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे हम इतने प्रोसेस कंप्लीट करने, इतने स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मोल्ड फ्लास्क को उल्टा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पैटर्न आपको विजिबल होने लगता है। नाउ यू हैव टू रिमूव दैट पैटर्न। तो पैटर्न को रिमूव करने के लिए हम वहाँ पर जो स्क्रूस और दूसरी चीज़ें रखें तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। थोड़ी सी सेकिंग करेंगे जिससे कि पैटर्न और मोल्ड मटेरियल के बीच में हल्का सा लूजनेस आ जाए, उसकी वजह से वहाँ पे गैप हो जाएगा। फिर हम उसको वहाँ पे पैटर्न को इजीली रिमूव कर पाएंगे। रिमूव करने के बाद हम चाहें तो एक दूसरा मोल्डिंग फ्लास्क लेंगे जिसका नाम होता है कोप या ड्रैग, जो भी आपको बनाना हो। चाहे तो हम पहले कोप की मोल्डिंग करा सकते हैं, चाहे तो पहले हम ड्रैग की मोल्डिंग करा सकते हैं। दोनों की जब मोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, ड्रैग मोल्ड की और कोप मोल्ड की, उसके बाद हम दोनों में से पैटर्न रिमूव करेंगे। और पैटर्न रिमूव करने के बाद फिर हमें सबसे नीचे रखना है कौन सा, ड्रैग मोल्ड बॉक्स। ड्रैग मोल्ड बॉक्स रखने के बाद उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंक करना है फेसिंग सैंड। फेसिंग सैंड स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर रखना है फिर हमको कोप मोल्ड बॉक्स। ठीक है ना। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पार्टिंग प्लेन पे दोनों इजीली वहाँ पे सेपरेट कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे फेसिंग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पैटर्न निकालने के दौरान यदि कहीं पे कोई पार्ट डैमेज होता है मोल्ड का, तो हम उसको रिपेयर करेंगे यूजिंग सिलिक और दूसरी चीज़ें रहती हैं। ठीक है ना। इसके बाद पिन होंगे दो हमारे पास, एक होगा राइजर पिन और एक होगा स्क्रू पिन। इनके द्वारा हम स्क्रू और राइजर बनाएंगे। ठीक है ना। पोरिंग बेसिन भी हमको कट करना होगा। एक हल्का सा गड्ढा बनाते हैं जिसके थ्रू मोल्टन मेटल या जो अपनी वैक्स रहेगी इस केस में उसको अपन पोर करेंगे, तो वहाँ पे एक पोरिंग बेसिन भी हम जनरेट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद उनको रिपेयर कर लिया जाएगा। रिपेयर करने के बाद उनको हम एक ऊपर एक रख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सैंड मोल्ड तैयार हो जाता है। सैंड मोल्ड तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो वैक्स को आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में, इन दिस केस यू हैव टू चेक द अमाउंट ऑफ वैक्स नीडेड फॉर मेल्टिंग। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो आपकी मोल्ड कैविटी है, you have to calculate the volume of that mold cavity. ठीक है। So whenever we prepare a casting of any material, initially we have to calculate the amount of material needed for pouring. तो pouring का जो मटेरियल, सपोज हमारा जो वैक्स है, सॉरी जो वैक्स कास्टिंग हम तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए जो मोल्ड कैविटी है, उस मोल्ड कैविटी का कुछ वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट है। उस वॉल्यूम में यदि हम उस डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ कास्टिंग मटेरियल नीडेड टू बी सप्लाइड इनटू द मोल्ड। आ रही बात समझ में। हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल का रिक्वायरमेंट, जो वॉल्यूम में हो सकता है, जो इजीली केजी में हो सकता है, किसका करना है, जो कि मोल्ड का है। अब लेकिन जब हम पोरिंग करेंगे तो कुछ कास्टिंग मटेरियल हम चाहते हैं कि कास्टिंग मटेरियल मोल्ड को completely फिल करे। अपार्ट फ्रॉम दैट सम अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल शुड बी अवेलेबल इन द राइजर एंड इन द रनर सेक्शन ऑल्सो।
तो कुछ अमाउंट यहाँ पे रनर की तरफ भी छूटता है और बहुत सारा अमाउंट इसमें भरा रहता है राइजर में. सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑल्सो. तो हम उसमें वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द either weight or volume of wax to be melted. इसकी मेल्टिंग के बाद फिर हमें क्या करना होता है, उसको पिघलाना होता है. तो पिघलाते कहाँ पे हैं, फर्नेस में पिघलाएंगे. ठीक है ना. वी हैव टू यूज अ क्रूशिबल. क्रूशिबल जिसके अंदर या तो मेटल को या वैक्स को, दूसरी चीज़ों को अपन पिघलाते हैं. उस वैक्स को अपन क्रूशिबल में रखेंगे. क्रूशिबल को हम फर्नेस के अंदर रखेंगे और फर्नेस की हीट ट्रांसफर होगी क्रूशिबल में और उसको रखी हुई वैक्स को मेल्ट करेगी. हम जब देख लेंगे कि वैक्स अब यहाँ पे सफिशिएंटली मेल्ट हो चुकी है, उस केस में हम क्रूशिबल को बाहर निकालेंगे. ठीक है ना. या तो हम लैडल में मोल्टन वैक्स डालेंगे या डायरेक्टली हम ट्रांसफर करेंगे मोल्टन वैक्स विच इज अवेलेबल इन द क्रूशिबल फॉर पोरिंग इट इनटू द पोरिंग बेसिन. पोरिंग बेसिन में हम जैसे ही उसको डालते हैं तो क्या होता है, आप देखना, आपने कुछ वीडियो देखे होंगे कि जैसे हम मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो इंस्टेंट, चूँकि जब पोर कर रहे होते हैं तो उसकी बहुत सारा जो एरिया रहता है मोल्टन मेटल का वो कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेरिक एयर के, तो उसका सॉलिडिफिकेशन हल्का सा स्टार्ट हो जाता है. तो जो लैडल होती है, लैडल पे आपको सॉलिडिफाइड मेटल भी दिखेगा. तो सेम थिंग हैपन इन दिस केस आल्सो. देयर आर चांसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वैक्स. ठीक है ना. व्हेन इट इज पोर्ड फ्रॉम आइदर फ्रॉम क्रूशिबल टू द पोरिंग बेसिन और फ्रॉम लैडल टू द पोरिंग बेसिन. तो आप हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट एक निश्चित समय में मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए. तो मोल्टन वैक्स को मेल्ट किया, उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, उसको डाला किस में, क्रूशिबल में. क्रूशिबल में पिघली. अब इसके बाद आपको पोर करना है. पोर का मतलब उड़ेलना है. किस में उड़ेलना है, मोल्ड के अंदर. तो उसको पहुंचाने का तरीका क्या है कि हम मोल्टन मेटल या मोल्टन वैक्स को, इस केस में वो वैक्स है, उस वैक्स को पोर करेंगे पोरिंग बेसिन का. ठीक है. विद केयरफुली. यदि हमने इसमें केयरफुली पोर नहीं किया तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं इरोजन ऑफ द पोरिंग बेसिन. और जब पोरिंग बेसिन से सैंड मटेरियल इरोड होता है तो ऑब्वियसली कहाँ मिक्स हो जाएगा, वो मिक्स होगा या तो पिघले हुए वैक्स के साथ में या पिघले हुए मेटल के साथ में, और वो चला जाएगा कहाँ पे, मोल्ड के अंदर. और इस केस में फिर वहाँ पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा. ठीक है. सॉलिडिफाई होने के बाद अब अगला काम हमारा क्या होता है, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम. ठीक है ना. उस कास्टिंग को हमें सॉलिडिफाई तो होने ही देना है और कुछ समय तक उसका टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए. तो वी विल वेट फॉर फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट के अंदर ही आप देखोगे कास्टिंग आपकी सॉलिडिफाई हो जाएगी. सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको मोल्ड को ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद फिर आपको सॉलिडिफाइड कास्टिंग बाहर निकालनी. So there are 4 important steps. Number 1, preparation of a sand mold, then melting of wax, pouring of wax, and अब solidification तो already हो ही जाएगा, वहाँ पे अपने आप होगा. You have to remove the wax casting. So there are only 4 steps. यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो. सबको समझ में आ गया? यस सर, आ गया. सर निखिल रिमूवल पाटिल, टू वैक्स कास्टिंग सर कैसे बताएं सर? कौन सी बेटा? रिमूवल ऑफ वैक्स कास्टिंग. ठीक है. इसको तरीका क्या होता है, देखो नॉर्मली जब हम वैक्स कास्टिंग करते हैं, ठीक है, मतलब पोरिंग के बाद ठीक हो सॉलिडिफाई हो तो कास्टिंग तैयार हो जाती है. तो उस केस में मोल्डिंग फ्लास्क लगा होता है. ठीक है ना. कल भी मैंने कुछ लोगों को वीडियो दिखाया था. तो एक तरीका होता है कि हम फ्लास्क पे निकाल के अलग करें. कोप और डायरेक्ट फ्लास्क की बात कर रहा हूँ मैं, मोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ. यस सर. एक बार जब फ्लास्क अलग हो गए हो जाते हैं, उस केस में जो सैंड मोल्ड मटेरियल रहता है वो अपने आप वहाँ पे कुछ लूज होकर नीचे गिर जाता है. नहीं गिरेगा तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसको वहाँ पे रिमूव करके अलग करें. तब हम कास्टिंग मटेरियल को अलग करें, उसको मोल्ड मटेरियल को अलग करेंगे. तो जब मोल्ड मटेरियल को अलग करते हैं तो आपको फिर अलग से सॉलिडिफाइड कास्टिंग वहाँ पे दिखने लगेगी, जो इस केस में वैक्स की होगी और यदि उसी देश केस में किसी मेटल की बनी होगी. क्योंकि उस कास्टिंग का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा भी, तो ये ज़रूरी होगा कि आप उस कास्टिंग को टोंग्स के थ्रू पकड़ के वहाँ पे निकालो. इसके बाद उसकी कूलिंग करनी होती है. अब कूलिंग करने में क्या होता है, यदि आपने उसको किसी ठंडे पानी में डाल दिया या किसी ऑयल में डाल दिया तो कूलिंग तो उसकी जल्दी हो जाएगी, लेकिन चूंकि टेम्परेचर का डिफरेंस
पहले वो हायर टेम्परेचर पर था, फिर एकाएक आपने तो उसको रूम टेम्परेचर ठंडे पानी में डाल दिया, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि जो मटेरियल होता है वो ब्रिटल हो जाता है, ठीक है ना। ब्रिटल मतलब Yes. वो जल्दी फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हमें उसकी कूलिंग कैसे करानी है। तो हम मोल्ड मटेरियल से मोल्ड को ब्रेक करने के बाद इसको रिमूव करते हैं, कास्टिंग को रिमूव करते हैं और फिर उसको रूम टेम्परेचर तक आने देते हैं, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर के आने Yes, के sir. बाद फिर हम चाहें तो उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं वहाँ पर। एनी अदर Yes. क्वेश्चन? No, sir. चलो अगला अपन आगे देखते हैं। Result in this way we will prepare a wax casting. So the foundry job of wax casting is prepared successfully. This is the result and precautions. The molding sand should be free from clinkers. ये मोल्ड बनाने के दौरान आता है। क्लिंकर्स मतलब कोई छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, ठीक है ना, वो मोल्ड के स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी दोनों को अफेक्ट करेंगे। इसलिए जरूरी है कि क्लिंकर्स मतलब छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े जो चीज होती हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। द रेमिंग ऑफ द सैंड शुड बी डन प्रॉपरली। ये जरूरी होता है कि व्हेन वी आर मेकिंग सैंड मोल्ड देन इट शुड बी प्रॉपरली रेम्ड। यदि हमने लूज रेमिंग की मतलब फोर्स कम अप्लाई किया तो उस केस में हो सकता है कि मोल्टन मेटल की वेट की वजह से वो सैंड मोल्ड टूट जाए, अलग हो जाए। वहाँ पर अलग होने का मतलब हुआ है बिखर जाए वहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। यदि हमने बहुत ज़्यादा रेमिंग कर दी, एक्सेसिव रेमिंग की, तो उस केस में परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और परमेबिलिटी ज़रूरी होती है क्योंकि जो मोल्ड के अंदर गैसेस बन रही होती हैं वो गैसेस बाहर निकल के आनी चाहिए, तो वो पोर्स के थ्रू बाहर निकल के आती हैं। तो हम इसमें दो प्रकार का काम करते हैं, एक तो हम रैमिंग करते हैं और रैमिंग करने के बाद फिर वेंट वायर इस्तेमाल करते हैं, VENT वेंट वायर। वो वेंट वायर के थ्रू हम छोटे छोटे होल्स बना देते हैं। कहाँ तक बनाए जाते हैं? वो मोल्ड कैविटी तक बनाए जाते हैं। उससे क्या होगा कि जो मोल्ड के अंदर कुछ गैसेस यहाँ पर वहाँ पर बन रही हैं कास्टिंग के दौरान, तो वो गैसेस इन होल्स के थ्रू निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो रैमिंग शुड बी डन प्रॉपरली। थर्ड पॉइंट लिखा है प्रॉपर केयर शुड बी टेकन व्हाइल मेल्टिंग एंड पोरिंग वैक्स। ये तो किसी भी उसका जरूरी है, यदि हम चाहे तो वैक्स की पोरिंग करें या कुछ दूसरे मेटल की पोरिंग करें, तो उस केस में मेल्टिंग के समय और मेल्ट जब वो हो गया है तो मटेरियल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम फर्नेस टू द मोल्ड। तो एक्चुअली जब इंडस्ट्री में वर्क होता है तो ये डिस्टेंस काफ़ी कंसिडरेबल होती है। फर्नेस एक एंड पे सिचुएटेड है और हमारा मोल्डिंग जहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं वो दूसरे एंड पे बना हुआ है, तो पिघले हुए मेटल को ट्रांसफर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस व्हिच आर टू बी टेकन व्हाइल मेकिंग वैक्स कास्टिंग इन आवर वर्कशॉप, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटेड Yes. बाय क्वेश्चन है, आप चाहो तो इनको देख लो, अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। व्हाट इज अ पैटर्न? यू नो। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एक्चुअल प्रोडक्ट टू बी मेड? ये बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट टू बी मेड? कौन बताने जा रहा है इसका आंसर? पैटर्न कास्टिंग से कैसे अलग होता है, बस ये तो पूछा गया है यहाँ पे। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। बताइए कोई। निपेंद्र सिंह, निपेंद्र सिंह अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। निपेंद्र, रोल नंबर 70। सब सो जाते हैं जे, क्लास में अटेंडेंस लगाओ, घर में पटक दो मोबाइल एक तरफ। आलोक कुमार, रोल नंबर 13। यस सर। हाँ, बता सकते हो कि पैटर्न कैसे कास्टिंग से अलग होता है? इसका मतलब यही है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्ट टू बी मेड। कोई बता सकता आप में से? सर कास्टिंग जो होती है सर एक मेथड होती है, और जो सर पैटर्न होता है वो मतलब जो हम रेप्लिका बनाते सर मतलब किसी भी कास्ट मतलब किसी चीज का मॉडल बनाने की रेप्लिका होती है पैटर्न। ठीक है, ठीक है। कास्टिंग बेटे प्रोसेस भी है और जो ऑब्जेक्ट वहां पे बना रहे हैं वो भी कास्टिंग कहलाता है। अब आपको मैंने शुरुआत में पढ़ाया था कि जो पैटर्न होगा, पैटर्न की शेप और साइज और कास्टिंग मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कास्टिंग से बनाना है उसकी शेप और साइज में कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्यों होता है? एक उसका कारण है पैटर्न अलाउंसेस।
ठीक है ना। पैटर्न अलाउंसेस की वजह से पैटर्न की शेप और साइज बदल जाती है। दूसरा कारण होता है कई बार जो छोटे छोटे डिटेल होते हैं, माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, जिनको हम कास्टिंग से नहीं बना सकते हैं, तो कास्टिंग होने के बाद हम मशीनिंग, जैसे मान लो कि कोई कास्टिंग है उसमें 2 mm डायमीटर का होल हमको बनाना है, लेकिन वो 2 mm डायमीटर का होल कास्टिंग के दौरान नहीं बनाया जा सकता। तो कास्टिंग तो हम पूरी बनाएंगे, लेकिन बाद में उसकी मशीनिंग करेंगे अलग से। तो इस प्रकार से जो पैटर्न रहेगा, पैटर्न में तो कोई होल नहीं होगा, लेकिन कास्टिंग जो डिजायर्ड है उसमें होल होगा। 2 mm डायमीटर का या 3 mm डायमीटर का जितना डिजायर्ड है वो वहाँ पे होगा। तो एक डिफरेंस से बेसिक आता है यहाँ पे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, वन इज बिकॉज ऑफ पैटर्न अलाउंसेस and second is because of minute details which are to be made in casting. दूसरा क्वेश्चन है what important consideration a pattern maker has to make before planning a pattern. क्या होने चाहिए कंसिडरेशन? क्वेश्चंस ट्रिकी ढंग से लिखे गए हैं, आंसर सिंपल है उनके, बता सकते हो भाई कौन से कंसिडरेशन होने चाहिए? तो कंसिडरेशन है पैटर्न अलाउंसेस के लिए, कंसिडरेशन है माइन्यूट डिटेल्स के लिए। उसकी वजह से अपन पैटर्न की शेप और साइज में बदलाव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द डिफरेंट मोल्ड मटेरियल्स क्लासिफाइड? मोल्ड मटेरियल्स कौन कौन से बता सकते हो आप लोग? आप में से कोई भी जो जानता हो इसका आंसर अपने आप को अनम्यूट करके बताए। मोल्ड मटेरियल मतलब मोल्ड किस किस का बना है? तो एक तो होता है सैंड मोल्ड मटेरियल, ये है ना क्वेश्चन। प्लास्टिक, रेजिन। डिफरेंट मोल्ड मटेरियल, तो एक तो हो गया, नहीं प्लास्टिक तो कभी नहीं आएगा। मोल्ड या तो सैंड का बना होगा या मेटल का बना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मटेरियल अपन मानते हैं यहाँ पे, एक सैंड मोल्ड मटेरियल और दूसरा मेटल। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस देयर सिलेक्शन? तो सिलेक्शन किसके अनुसार होता है? वो डिपेंड करेगा कि हम जो पैटर्न है, पैटर्न की साइज क्या है। यदि पैटर्न की कास्टिंग की साइज बहुत बड़ी है तो हम सैंड मोल्ड बनाएंगे वहां पे। यदि पैटर्न या कास्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सैंड मोल्ड कास्ट लॉस्ट वैक्स मोल्ड कास्टिंग इस्तेमाल करेंगे, तो उस प्रकार का मोल्ड मटेरियल आ जाएगा वहां पे। यदि कास्टिंग सिंपल है, उसकी बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करना है, तो उस केस में हम डाई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मेटालिक मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मोल्डिंग सैंड? बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? नाम याद है? भूल गए उस समय तक तो, क्योंकि चौथी यूनिट चल रही है। अब मैं कुछ नाम आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले आता है रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बगैर जो मोल्ड रहेगा वो टेम्परेचर बियर ही नहीं कर पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है परमिएबिलिटी या पोरोसिटी, ये भी जरूरी है। फिर इसके बाद आता है, आप यू कैन राइट डाउन द adhesiveness, cohesiveness, green strength, dry strength, hot strength, ठीक है ना। थर्मल एक्सपांसन, थर्मल कंडक्टिविटी और फ्लोएबिलिटी। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मोल्ड मटेरियल के, मोल्डिंग सैंड की होती हैं। हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ मोल्डिंग सैंड? भाई यदि ये प्रॉपर्टीज होंगी तो मोल्ड अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो ये तो हमेशा इफेक्ट करने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड? बता सकता है कोई मोल्डिंग सैंड के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सबसे पहले आता है सिलिका सैंड या सैंड ग्रेन्स, सेकंड नंबर क्ले, थर्ड नंबर मॉइस्चर या वाटर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वेरियस टूल्स यूज्ड इन फाउंड्री शॉप एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस। फाउंड्री शॉप के टूल्स अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके पहले भी अपन लिखे हुए देखे हुए हैं, वो सारे के सारे टूल्स फाउंड्री के हैं जो अपन ने अभी स्टार्ट किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए सैंड मोल्ड। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग। मोल्डिंग सैंड इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मोल्ड। बेकिंग सैंड कौन सी होती है कि जो यूज सैंड है, इट इज यूज फॉर फिलिंग द सैंड मोल्ड मटेरियल। और बेकिंग सैंड
in the space between molding flask and the you can say green sand. देखो पैटर्न रखने के बाद हम सबसे पहले ग्रीन सैंड डालेंगे. ग्रीन सैंड की जब सफिशिएंट लेयर वहां पर बन जाएगी उसके बाद हम इन मटेरियल को यहाँ पर भरेंगे जो कि बेकिंग सैंड होगी. थर्ड इज पार्टिंग सैंड. पार्टिंग सैंड हमेशा पार्टिंग प्लेन पे इस्तेमाल होती है और जिस पार्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में ये पार्टिंग प्लेन डली होती है उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो. फेसिंग सैंड. फेसिंग सैंड मोल्ड के अंदर फेस पे इस्तेमाल की जाती है. इससे क्या होता है, बेसिकली कार्बोनेशियस मटेरियल होता है, ठीक है ना, और वो कास्टिंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जरूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. पोरिंग बेसिन क्या है? ये वो पार्ट होता है जिसमें मोल्टन मेटल पोर किया जाता है. स्प्रू क्या है? स्प्रू एक चैनल है जो कि पोरिंग बेसिन और रनर को कनेक्ट करता है. स्प्रू बेस वेल, ये स्प्रू के नीचे माउंटेड होता है, ये भी एक चैनल का पार्ट है. ये क्या करता है? स्प्रू बेस वेल इसलिए बनाया जाता है कि ऊपर से जो मोल्टन मेटल आ रहा है वो किसी वेलोसिटी से मोल्ड के ऊपर स्ट्राइक ना करे, अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे इरोजन हो जाएगा मोल्ड मटेरियल का. इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो जब जमीन में गिरता है तो उसमें गड्ढा बना देता है. उसी प्रकार से जब मोल्टन मेटल मटेरियल मोल्ड के अंदर ऊपर कुछ हाइट से नीचे गिरेगा तो मोल्ड के अंदर वो गड्ढा बना देगा जो कि हमारे लिए डिजायर्ड नहीं होगा. ठीक है ना. इसलिए स्क्रू बेस वेल का करता वहाँ पे उसको रोकता है, हल्का सा इरोजन हो सकता है. इसके बाद डायरेक्शन में चेंज होता है. स्क्रू से आने के बाद मटेरियल राइजर रनर में जाता है और उसकी डायरेक्शन लगभग 90 डिग्री चेंज हो जाती है. ये जो स्ट्रीम है मोल्टन मेटल के फ्लो की वो उसको टर्बुलेंट से वापस लेमिनार में कन्वर्ट करता है. रनर वो चैनल है जो कि स्क्रू से कनेक्ट करता है किसको, गेट को कनेक्ट करता है. राइजर ये वो चैनल है जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेटल रखा रहता है, फिल किया जाता है ड्यूरिंग कास्टिंग. तो एक बार जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, सिंकेज कैविटी डेवलप होती हैं, तो सिंकेज कैविटी डेवलप होने के दौरान ये एक्स्ट्रा मटेरियल सप्लाई कर देता है वापस मोल्ड के अंदर. प्राइमरी कैविटी. व्हाट इज प्राइमरी कैविटी? दिस इज द मोल्ड इटसेल्फ. यदि आप कभी भी गेटिंग एलिमेंट देखते हो तो उसमें मोल्ड कैविटी प्राइमरी कैविटी है और बाकी की जो कैविटी है वो सेकेंडरी कैविटी मानी जाती है. उस सेकेंडरी कैविटी में पोरिंग बेसिन, स्क्रू, बेस वेल, रनर, गेट, राइजर, ये सब कुछ शामिल होता है, इंक्लूड होता है. लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन सैंड मोल्ड एंड ड्राई सैंड मोल्ड. बता सकता है आप में से कोई इनमें डिफरेंस? ग्रीन सैंड मोल्ड सर सिलिका सैंड का मिक्सचर होता है और जो ड्राई फ्रेशली सैंड प्रिपेयर्ड सैंड, हाँ बिल्कुल सही है. ग्रीन सैंड वो सैंड है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड है जिसमें कुछ अमाउंट मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उसका बना हुआ मोल्ड ग्रीन सैंड मोल्ड हो गया. अब यदि हमने उस ग्रीन सैंड मोल्ड को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, उसको कुछ दिनों के लिए रख दिया ड्राई होने के लिए, तो उस मोल्ड के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट होकर खत्म हो जाएगा. तो अब जो सैंड मोल्ड बचेगा जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है उसको अपन बोलते हैं ड्राई सैंड मोल्ड. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब आप मेरी तरफ से खत्म है. आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बट मेरी तरफ से एक मतलब सजेशन है कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो. जहाँ पर समझ में नहीं आता पूछो, और जहाँ आपसे पूछा जाता है वहाँ पर जवाब दो, क्योंकि एवेल्यूएशन मेरे अंदर तो पूरी तरफ से चल रहा है. मैं लोगों को इसलिए पिन पॉइंट करता हूँ, बाकी लोगों को नहीं करता हूँ. कुछ लोग जवाब दे रहे होते हैं, बाकी लोग सो रहे होते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लगभग 1.5 मिनट अपने पास बचा है, आप लोग पूछ सकते हो कोई क्वेश्चन हो तो. अदरवाइज मैं इसको बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ. ठीक है, तो मैं क्लास बंद करता हूँ. ठीक है. यस सर. ओके. थैंक यू Thank सर. you, sir. थैंक यू.